Where are you originally from and where do you currently live? I'm originally from Aligarh and currently I'm staying in Gurgaon. I am originally from Uttarakhand, Srinagar, Garhwal, and I am currently living in Mohali. I'm originally from Mulbagal and I currently stay in Bangalore. I'm originally from Mehboob Nagar and I currently live in Brooklyn. Originally from Rajasthan and I currently live in Portland, Oregon, US. Agartala and Bangalore. Shiliguri and New Delhi. जयपुर एंड मुंबई। मैंने इथीरियल के कुछ सब्सक्राइबर्स से पूछा कि वो ओरिजिनली कहाँ से हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ। माई चाइल्डहुड वॉज इन वेरियस स्मॉल टाउन्स ऑफ यूपी एंड व्हेन आई ग्रू अप I left home for higher education. After completing my formal studies, I started living in a big city. And honestly, it came quite naturally. सब लोग यही कर रहे थे और मुझे लगा कि यही करना पड़ता है. तो मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और निकल पड़ा एक एफ्लुएंट लाइफ की तलाश में। अगर आप ये फिल्म किसी बड़े शहर में देख रहे हैं, there is a good amount of chance that you or someone in your recent ancestors migrated from a smaller town or village. Now the question really is, why? क्यों हमने इसको जीवन की एक सच्चाई मान लिया? And why can't we live in our own villages or towns? Well, I know a place where we can find those answers. A place which is one of the worst affected regions by migration. मेरा नाम महिपाल सिंह पंवार और महिपाल के नाम से मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे गुड्डू भाई कहते हैं, गुड्डू पंवार के नाम से। और मैं इसी जहाँ पे आप इंटरव्यू लेने आए हैं, धार ग्राम पंचायत का ही निवासी हूँ। गांव से हमें अपना प्यार था, बचपन हमारा यहीं भी था। मैं क्लास 9 तक यहीं पढ़ा। तो हम भी इस गांव को छोड़ के चले गए थे आज से मतलब 1982 में। हमारे बाबूजी मजदूरी करते थे मसूरी जैसे शहर में एक, तो गांव से हमें लेके चले गए। साल 2 साल 5 साल तक हमारी सर्दियों में छुट्टियां पड़ती थी तो हम घर भी आते थे। 1-1.5 महीना घर रहते थे, फिर चले जाते थे। फिर सर्दियों में छुट्टी पड़ी, फिर आ जाते थे। लेकिन वो कुछ साल तक हुआ। अब कुछ साल तक कैसे हुआ कि वहाँ भी कुछ जायदाद जोड़ दी। अब वहाँ किसके बाद छोड़ें जितने लोग घर आए, तो फिर वहीं पे ब्रेक हो गया। फिर आना कम हो गया। फिर ऐसा रह गया, मेरे परिवार में कोई शादी हो गई, कभी देवता की पूजा हो गई उसलिए आ गए, कोई नियरेस्ट आदमी एक्सपायर हो गया तो आ गए। उसके बाद सिर्फ यही आना जाना लगा रहा। सब मसूरी में रहे, वहीं से अपनी रिश्तेदारियाँ, किसी की रुड़की की तरफ हो गई तो किसी की विकास नगर की तरफ हो गई, सिस्टर की दिल्ली की तरफ हो गई, मकान बना लिया, तो वो वापस नहीं आए। What was the reason behind you migrating from your hometown?
Till my 10 years, I spent in the place that I was born. And after that, I came back to a city called Hyderabad to further do my schooling. I thought that the opportunities that will be possible in Bangalore or Bombay or slash outside in a metro city would be much more. Our move to Jaipur was because of my dad's health. So I was looking for a job, so I couldn't find it on my hometown. Good educational institutions which were not available at my place. We don't have good colleges in Aligarh where I could have done my MBA or engineering, etc. If you're preparing for IIT JEE and if you're not in like one of the major hotspots at that time, there was Spit JEE, Bansal classes, and all of that. Trying to grow as a engineer in my career. It's just like it shifted gradually. Like since I was like growing up, I choose my school, I choose the college, then I'm working. I landed here. So it just happened, Yeah. It was something that was supposed to be done. It was something that was just, everyone was doing it, and this is how life was around. Yeah, maybe. Yeah. Okay. Throughout history, we humans have explored new opportunities for the want of a better life. And now more than ever, we are constantly looking to upgrade our lifestyles. However, there is a difference. You see, when a person migrates for the want of a better lifestyle, it is different from a person who migrates because of the lack of basic necessities. And maybe this is where all of it actually begins. मेरा नाम सूरवीर सिंह गंडारी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यही हमारा गांव है। इस जगह का नाम है ये ग्राम कुनियाड़ी, ये जो है धार पेयोकोटी का उपगांव है। अभी पिछले साल ही हमारा ये स्कूल जो है विद्यालय बंद होने लग गया था। तो बंद होने लग गया था। जो यहाँ पर 5-6 बच्चे थे वो जूनियर में चले गए, उसमें एक मेरा भी बच्चा था, वो जूनियर में निकल गया। अब मेरी एक बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि साहब आप एक लड़की है, आप टीसी ले लो और इसको जो महिधार में एडमिशन दिला लो। तो मेरे को काफ़ी शौक लग गया। अब और मैंने सोचा अपने दिमाग में कि मैंने कहा अगर विद्यालय बंद हो रहा तो ये तो बड़ा कोई बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी है। अब मैं जाऊँगा कहाँ? अब लड़कियाँ, मैं इतना बड़ा कोई वो तो हूँ नहीं, अब बच्चों को कहाँ ले जाऊँगा? ये कभी यहाँ दूसरी हमारी यहाँ ये बगल में एक और क्षेत्र है, डागर क्षेत्र। एक क्षेत्र इधर बडियार में है। एक स्कूल में तो एक ही बच्चा था, लेकिन जो दूसरा स्कूल था उसमें 4 बच्चे थे, लेकिन उसको भी बंद कर दिया। Instead of giving up on his village, Surveer Singh ji decided to assert his right to get his child educated. What followed was a long battle, but in the end, he was able to keep the school running with just one student, his 8 years old daughter. अध्यापक अपने सिलेबस को जो उसके सब्जेक्ट हैं, मतलब 7% ना से 75% ना 50%, अगर अध्यापक उन बच्चों को उसके बारे में बता रहा है तो कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन अगर जहाँ नहीं बताए, जो अध्यापक ना बताए, तो स्तर कहाँ से बढ़ेगा? फिर वो स्तर तो वहीं निम्न का निम्न रह जाएगा। द ब्राइड आर सिंगिंग द ट्री। मैंने सुना है सबसे ज्यादा शैतान आप हो। उसको आता ही नहीं है, इस प्रियंका बंदरी को। क्या नहीं आता इसको? कुछ नहीं आता।
eating sugar, no papa. Telling lie, no papa. मुझे दिल्ली ले जाओ। चलो चलो चलो, आपके कपड़े कहाँ हैं? बैग में भरो। दिल्ली में क्या करोगी? पढ़ाई? नहीं, अपने ताऊ के साथ रहूंगी। अरे तो ताऊ जब ऑफिस जाएंगे तब आप क्या करोगी? घर पे रहूंगी। घर पे क्या करोगी अकेले? पर तब स्कूल ही चली जाना। स्कूल वहाँ है, दिल्ली चलो। मुझे दिल्ली ले जाओ। अच्छा चलो फिर उठो। चलो चलो। तो आप लोग सब सगे भाई हैं सारे? सगे भाई हैं और सारे बाहर हैं अभी? और सब बाहर है। अच्छा, और ये जो घर है जो हम देख रहे हैं इसके हमारा भी ये सारा साझा है, हमारा सामूहिक रूप से। पहले हम लोग यहीं रहते थे। पहले यहीं रहते थे, ज्वाइंट फैमिली के टाइम का है ये कब से खाली होगा लगभग? ये लगभग है 35 सालों से। 35-40 साल हो गए। 35-40 साल हो गए। सब यहाँ पर बचपन में रहे हैं? सब भाई हैं, सब भाई, सब चाचा ताऊ के लड़के सारे, एक ही परिवार है हमारा साथ। अच्छा, तो आप लोग के परिवार में अब मतलब कितने लोग यहाँ पर रह गए हैं? यहाँ पे भाई ये बुजुर्ग लोग हैं, पुराने कोई भी नहीं है। बुजुर्ग यहाँ पे हैं। अच्छा, आंखें नहीं उनकी, अब बैठे हैं बस। बाढ़ में कोई रोजगार है नहीं तो हाँ, इसलिए और क्यों यहाँ करोगे क्या आप, ये बताओ आप। अब ये लोग तो रिटायरमेंट हो गए, पेंशन खा आके घर में बैठ गए। पर जो जिसको अपना फैमिली पूरी पालनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, वो क्या करेगा यहाँ पे? तीन रोजगार, शिक्षा और कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई अगर चौथी कोई चीज नहीं है। वो तो यहाँ रह चुके हैं बचपन में, आप भी रह चुके हैं, आपका लगाव है। पर जैसे आप नेक्स्ट जनरेशन है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, इनका बचपन वो तो मतलब ही नहीं। अच्छा, हम ही नहीं आए तो वो कहाँ से आएंगे यहाँ? ये पिकनिक के लिए आए बस खाली एक। हमारे बच्चे हैं, वो तो मतलब ही नहीं। हम ही नहीं आए, हमारी मजबूरी है, तो वो तो कहाँ से आएंगे फिर? पलायन जो गए थे बाहर, वो यहीं से गए थे। यहाँ पैदा हुए, कुछ टाइम बचपन यहाँ बिताया, उसके बाद चले गए, तो उनका आना जाना लगा रहता था। अब आज का जो पलायन है वो पैदा वहीं बाजार में हो रहा है, वहीं पढ़ रहा है, शादी भी उसी माहौल में कर रहा है। उसको तो ये पता है कि मेरा खेत कहाँ है, मेरा खलियान कहाँ है, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, या मेरा फलाना रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। दादा दादी जिसके हैं तब तक आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं, कहते हैं यार हम बोर हो रहे हैं। किसी शादी में आए तो वो फंक्शन में अटेंड नहीं करते, साइड में बैठे रहते, क्योंकि उनको कल्चर ही सूट नहीं करता है। उसको घर आके एड्रेस पूछना पड़ेगा मेरा वाला घर कौन सा है, उसको ये भी कंफर्म नहीं कि ये वाला कमरा मेरा। जब एक पेड़ बनता है तो सबसे पहले बनना शुरू होती है उसकी जड़, फिर बनता है उसका धड़, और अंत में बनती हैं टहनियाँ, फूल और पत्तियाँ। धड़ चौड़ा होता चला जाता है, टहनियाँ लंबी होती चली जाती हैं, पत्तियाँ और फूल आते जाते रहते हैं। पर उन सब को जो ज़मीन पर संभाल के रखती है वो है उस पेड़ की जड़। ये बात मुझे थोड़ा देर से समझ में आई कि मैंने सिर्फ शहर ही नहीं बदला, मैं उस चीज़ से भी अलग हो गया जो मुझे ज़मीन पर संभाल कर रखती थी। मेरी टहनियाँ लंबी हो गईं, पर जड़ों को मैंने भुला दिया। और शायद इसीलिए फूल लगना कम हो गए हैं, फल आना कम हो गए हैं। तो ये घर जो थे सब टूट चुके थे। जब हम 2013-14 में यहाँ आए तो ये सब खंडर था उस
His love for his village brought Gudduji back to his home that was once devastated as no one lived here. Today, despite all odds, he is trying to bring a small change in his village. हमारे उत्तराखंड के लिए शायद मेरे ख्याल से पहली क्रॉप है ये विदेशों में उगाई जाती है, JNK उगाता है हमारा, और ये हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज उगाते हैं सिर्फ डेमो के लिए, बाकी लैंड पे कहीं नहीं था आज तक। अब हमारे पास छोटी सीढ़ी नुमा खेती है तो हम इस पे फ्रूट बेल्ट में जा सकते हैं, हम यहाँ पे सेब उगा सकते हैं, कीवी उगा सकते हैं, अखरोट उगा सकते हैं, मौसमी उगा सकते हैं, संतरा उगा सकते हैं। तो ये खुद तो आदमी करेगा नहीं, गवर्नमेंट का है, गांव-गांव में कैंप लगाए, कृषि विभाग को भेजे, लोगों को माइंड चेंज करे। आज मेरे साथ 6-7 लोग काम कर रहे हैं जो जुड़ चुके हैं धीरे धीरे। और हमारी सोच ये है जी कि मैं अगर सब कुशल रहे तो इस गांव को, अपने गांव को सोच चेंज करनी है। If you were given the chance to go back and live in the place where your family is originally from, if you have all the things that you want to live a good life, would you want to go back there? I would definitely love to do it from my hometown. If it's a good school and near to my hometown, I would prefer that place over a great place and not being in hometown. I am actually thinking right now, even whether this year or next year or in 2 years to come back. I don't mind staying in smaller cities. I would love to. But honestly, things are cheaper, places are bigger, your houses are bigger. If it matches with my personal aspirations, where I get to work from my home, where there is a good access to some of the basic necessities, not like superficial facilities, but at least some basic facilities, I would absolutely go back. On Ethereal, we are trying to explore some of the larger and meaningful questions about life through our films. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, कोई भी वीडियो आपने पहले देखा हो या फिर जो वीडियो आपने अभी देखा ये आपको पसंद आया हो, तो आप हमें पे कर सकते हैं www.etherealcolors.com/pay पर जाके। ऑब्वियसली जो काम हम करते हैं, जो स्टोरीज़ हम ऑथेंटिक तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, उनमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, लोग भी लगते हैं एंड ऑब्वियसली पैसे भी लगते हैं। लेकिन ये काम संभव इसलिए है क्योंकि आप हमारा साथ देते हैं। आपके साथ की वजह से ही हम जो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो आप पे कर सकते हैं www.etherealcolors.com/pay पर जाके, ताकि हम आपके लिए और फिल्म्स बना सकें। थैंक्स।